Try to understand. Elasticity is a responsiveness. It is a responsiveness of the demand. Responsiveness of the demand. How demand responds to change in the price. That is the price elasticity. To change in the income elasticity. To change in the prices of related goods, cross elasticity. So it is a responsiveness, it is a sensitiveness of the quantity demanded or demand to one of the variables on which demand depends. बहुत simple बोल रहा मैं. It is the change in the demand, change in the quantity demanded because of changes in price of the good, price of the income, prices of related goods. हम फाउंडेशन में एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी भी सीखते हैं, ठीक है. 12th में 2 इलास्टिसिटी है और इतने डीप में भी 3 इलास्टिसिटी इतने डीप में भी नहीं है. सो व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड? इट इज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ राइट क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी with respect to change in the price of that commodity, or it is percentage change in the quantity demanded of a commodity divided by percentage change in the price of that commodity. I am not talking about the normal change, I am talking about the percentage change. What is the income elasticity? It is the responsiveness of the demand of a commodity with respect to changes in the income of the individuals, or it is a percentage change in the quantity demanded of a commodity divided by percentage change in the income. And what is the cross elasticity of the demand? It is responsiveness of a quantity demanded of a commodity with respect to changes in the prices of other commodity on which it depends, demand depends, or percentage change in the quantity demand of a commodity X divided by percentage change in the price of the commodity Y. So price elasticity, income elasticity, and cross elasticity are the 3 types of the demand elasticity. Demand elasticity के 3 types है: price elasticity, income elasticity, and third is cross elasticity. हमने प्रीवियस लेक्चर में 2 इलास्टिसिटी डिटेल में देखे थे. वन वाज इनकम इलास्टिसिटी. लेट मी शो यू इनकम इलास्टिसिटी. यस, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द इनकम. तो उसका हमने फॉर्मूला निकाला, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द इनकम. नो वन विल आस्क यू न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, वो आपको डिराइव करने को नहीं बोलेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ इनकम इलास्टिसिटी, गुड्स आर डिवाइडेड इनटू नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड. On the basis of income elasticity, goods are divided into normal goods and inferior goods. Normal goods are the goods where with the increase in the income, demand also increases. मतलब जब income increase होगी, demand भी increase होगी, दोनों positive है. तो answer income elasticity will be positive. Or when income decreases, demand also decreases. दोनों decrease होंगे, दोनों negative है, मतलब answer positive आएगा. तो in simple words, goods whose income elasticity is a positive, goods whose income elasticity is a positive are called as which goods? Normal goods. On the contrary, inferior goods, जो हमने 12th में जिसको हम गिफेंस गुड भी बोलते हैं, बट मैंने लास्ट वीक फाउंडेशन लेक्चर में समझाया था कि inferior goods and गिफेंस गुड्स आर डिफरेंट. ये मैंने फाउंडेशन में समझाया था. 12th में they are same, 12th में they are same, but there is a difference, right? All inferior goods are not गिफेंस गुड्स, but all गिफेंस गुड्स are inferior goods. ये मैंने फाउंडेशन में वो तब समझाया था. अभी राइट वो चीज भूल जाओ, फिलहाल हम समझेंगे दे आर सेम. राइट, विद द इंक्रीज इन द इनकम वी डिक्रीज द डिमांड. जैसे इनकम इंक्रीज होती है, उनकी डिमांड डिक्रीज होती है. यू बाय लेस, मतलब जैसे जैसे आप रीच हो रहे हो, यू आर बाइंग लेस एंड लेस एंड लेस ऑफ दैट. मीन्स right, you are substituting that commodity with some better commodity, superior commodity. So ऐसे goods के केस में जहां पे income increase होती है, demand decrease होती है, there is a negative relation between income and demand are inferior goods. Positive relation between income and demand, right? Normal goods. तो income elasticity भी positive रहेगी.
नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द इनकम एंड द डिमांड, राइट, वो इंफ्रा गुड्स रहेंगे अगर रिलेशन नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आंसर नेगेटिव रहेगा। या विद डिक्रीज इन द इनकम इंफ्रा गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती है, लाइक रिसेशन में इंफ्रा गुड्स हैव रियली गुड डेज, उनकी डिमांड इंक्रीज होती है बिकॉज लोगों की इनकम कम होती है ड्यूरिंग रिसेशन, तो पीपल स्विच टू इंफीरियर गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स के लिए वो अच्छे दिन होते हैं, राइट। सो इनकम डिक्रीज हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, निगेटिव रिलेशन है, इनकम इलास्टिसिटी इज निगेटिव। सो सिंपल वर्ड्स में आगे से याद रखना, इनकम और इनकम इलास्टिसिटी कुछ भी बोलो मुझे फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड्स goods into two categories, normal goods having a positive relationship, positive income elasticity, inferior goods having negative elasticity, negative relation, ठीक है। even normal goods also divided into two things, two parts, necessities and luxuries. As we increase the income, as our income increases, we increase the consumption of necessities as well as luxury. हम नेसेसिटीज भी परचेस करते हैं ज्यादा और लग्जरीज भी ज्यादा परचेस करते हैं। हाउएवर हम नेसेसिटीज परचेस करेंगे बट अप टू ए सर्टेन लिमिट, बट नॉट मोर देन दैट। मतलब विद द इंक्रीज इन इनकम नेसेसिटीज की डिमांड भी इंक्रीज होगी, मैं मान रहा हूं इनकम एंड नेसेसिटी गुड्स की डिमांड पॉजिटिव रिलेटेड है, बट अप टू ए सर्टेन लेवल। अगर इनकम मेरी 10% से इंक्रीज होगी, मे बी मैं नेसेसिटीज की डिमांड 5% से इंक्रीज करूंगा, 8% से। आई डोंट स्पेंड एंटायर इनकम ऑन द नेसेसिटीज, मैं कोई इनकम लग्जरीज पे भी डालूंगा। सो एज आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर रिच, आई एम स्पेंडिंग, आई एम डिमांडिंग मोर एंड मोर नेसेसिटी गुड्स, बट माई डिमांड डज नॉट इंक्रीज, राइट, टू दैट एक्सटेंट। मतलब जितने से इनकम इंक्रीज हो रही है उतने से मेरी, राइट, नेसेसिटी गुड्स की डिमांड नहीं इंक्रीज होती। सो पॉजिटिव रिलेशन है but income elasticity is less than 1. So income elasticity positive but less than 1, 0 से 1 के बीच में रहेगी, उन गुड्स को हम बोलते हैं नेसेसिटी गुड्स। एंड लग्जरी के केस में as you become rich and rich you buy more and more of the luxury goods, उनकी डिमांड बहुत इंक्रीज होती है। सो जैसे आप इनकम, जितने से इनकम इंक्रीज हो रही है उससे ज्यादा से परसेंट से आपकी डिमांड फॉर द लग्जरी गुड्स इंक्रीजेस। सो लग्जरीज हैव अ पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी एंड दैट टू ग्रेटर देन 1, ठीक है। सो आप वैसे कैटेगराइज कर सकते हो। आपके बुक में इतना लिखा नहीं है जितना मैंने अभी डिस्कस किया है, बट यू कैन राइट इनकम इलास्टिसिटी कैन बी नेगेटिव फॉर इंफीरियर गुड्स, इट कैन बी पॉजिटिव फॉर नॉर्मल गुड्स, इवन इन दैट फॉर नेसेसिटी गुड्स इनकम इलास्टिसिटी लाइज बिटवीन 0 to 1। आपके टेक्स्ट बुक में गलत लिखा है, उन्होंने लिखा है 0, दैट इज टोटली ब्लंडर, ठीक है। 0 न्यूट्रल गुड्स के केस में होती है, नेसेसिटी गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी लाइज बिटवीन 0 to 1, फॉर लग्जरी गुड्स इनकम इलास्टिसिटी लाइज बिटवीन 1 greater than 1, ठीक है। आगे दैट वाज इनकम इलास्टिसिटी। उसके बाद हमने देखा क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस रिलेटेड गुड्स का दूसरा नाम है इकोनॉमिक्स में क्रॉस गुड्स। रिलेटेड गुड्स को आप क्या बोलते हो इकोनॉमिक्स में? क्रॉस गुड्स। मतलब उनके केस में होता क्या है, विथ इंक्रीज इन द, राइट, with the increase in the prices of related goods demand for our commodity decreases, like with the increase in the price of substitutes, जब सब्स्टिट्यूट की प्राइस इंक्रीज होती है डिमांड फॉर आवर कमोडिटी इंक्रीजेस, पॉजिटिव रिलेशन है। प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट एंड डिमांड ऑफ आवर इज अ पॉजिटिव रिलेशन। जब प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट डिक्रीजेस, वो सस्ता होता है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी आल्सो डिक्रीजेस, पॉजिटिव, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव होते हैं। सो जब रिलेशन पॉजिटिव रहेगा तो इलास्टिसिटी भी पॉजिटिव रहेगी, राइट। ऑन द कॉन्ट्ररी, in case of complementary goods, when the price of the petrol increases demand for vehicle decreases, opposite direction में move हो रहे हैं, negative relation है। when the price of the petrol decreases, vehicle की demand increase होती है, price is the same, still vehicle की demand increase होती है, negative relation है। so जब negative relation होता है, try to understand between the price of the related good and demand of my commodity, price of the related good and demand of my commodity is a negative relation, those goods are complementary and उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव होगी। so goods having negative cross elasticity are complementary goods, goods having positive cross elasticity are, right, substitutes। और substitutes में भी मैं आपको बोलना चाहूंगा, right, जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी रहेगी 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव, उतने वो क्लोज सब्स्टिट्यूट होते जाते हैं। अगर एग्जांपल में बोलता हूं देयर आर टू गुड्स एक्स एंड वाई, ध्यान देना, दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन।
एक्स एंड वाई, ये फाउंडेशन में मैं और इस पे डिस्कस करूंगा। एक्स एंड वाई, इनकी क्रॉस इलास्टिसिटी इज 10 एंड अगर क्रॉस इलास्टिसिटी 50 है, तो यहां पे जो गुड्स है एक्स एंड वाई, दे आर सब्स्टिट्यूट्स। यहां पे भी वो सब्स्टिट्यूट्स है, बट ये वाले जो रहेंगे गुड्स, सपोज दे आर ए एंड बी, देयर आर टू गुड्स ए एंड बी जिनकी क्रॉस इलास्टिसिटी 50 है, देयर आर टू गुड्स एक्स एंड वाई जिनकी क्रॉस इलास्टिसिटी 10 है। ए एंड बी आर मोर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स देन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई जो एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट्स हैं, उससे भी क्लोजनेस ज्यादा इन ए एंड बी। एंड जब क्रॉस इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होती है, दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। तो शायद से मैंने लिखा होगा, आई डोंट नो, मुझे चेक करने दो, राइट? क्रॉस इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट, लेट मी चेक। जब इनफाइनाइट होती है क्रॉस इलास्टिसिटी, दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। एंड इफ यू रिमेंबर, हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा था, द परफेक्ट कॉम्पिटिटर सेलर्स सेल्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म्स सेल्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, मतलब वहां पे क्रॉस इलास्टिसिटी क्या रहेगी उनकी? इनफाइनाइट क्रॉस इलास्टिसिटी रहेगी। शायद से इफ यू चेक एंड, आप अगर टेक्स्ट बुक में जाके भी चेक करते हो, ओ सॉरी मैंने अकाउंट्स का ओपन किया, लेट मी ओपन द इको। ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर बेसिकली। सो हमने मार्केट में देख रहे थे ना, मार्केट इसके बाद था, यस ये सप्लाई है, सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टेक्स्ट बुक से निकाल दिया है उन्होंने। उसके बाद है ये मार्केट्स, अच्छा यहाँ पे रहेगा, ये मोनोपोली है, यहाँ कहाँ पे रहेगा, लेट मी शो यू। ये टाइप्स ऑफ मार्केट्स है, फिर ये प्राइस इक्विलिब्रियम, प्राइस आउटपुट इन अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है। मोनोपोली का है, अरे परफेक्ट कंपटीशन किधर है, उसके फीचर्स, हाँ यहाँ पे होगा, देखो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स कहाँ पे रहेगा, होमोजेनियस प्रोडक्ट, ऑल द प्रोडक्ट्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, यहाँ पे लिख देना, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी इज इनफिनिट, लिखो क्रॉस इलास्टिसिटी इज इन्फिनिटी, इज इन्फिनिटी। पेज नंबर है 46, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो पेज नंबर 46 पे आओ और वहां पे लिख देना, वहां पे क्रॉस इलास्टिसिटी इज इन्फिनिट। ओके ठीक है, अच्छा नाउ क्रॉस इलास्टिसिटी, सो ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, क्रॉस इलास्टिसिटी कैन बी पॉजिटिव फॉर सब्स्टिट्यूट्स, क्रॉस इलास्टिसिटी इज नेगेटिव फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्रॉस इलास्टिसिटी कैन बी जीरो फॉर अनरिलेटेड गुड्स, एंड क्रॉस इलास्टिसिटी इज इनफिनिट फॉर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। कोई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं ना, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिवली इनफिनिट होती है, ये पॉजिटिवली इनफिनिट बोलते हैं। बट ऐसे आई डोंट थिंक, कहां पे मैंने थ्योरी में ऐसे कहां पे पढ़ा है, बट फिर भी कोई लोग बोलते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिवली इनफिनिट होती है, ऐसे भी लोग बोलते हैं। पॉजिटिवली इनफिनिट इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, नेगेटिवली इनफिनिट इज अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। आगे नेक्स्ट, सो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा, एंड मैंने बोला था दिस विल बी फॉर 2 मार्क्स टू 4 मार्क्स। मुझे नहीं लगता 4 मार्क के लिए पूछेंगे, 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट में इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी पूछ सकते हैं। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, जो 8 मार्क का क्वेश्चन होता है या 10 मार्क का क्वेश्चन होता है, वो होता है टाइप्स ऑफ द इलास्टिसिटीज, जो 3 है, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड प्राइस इलास्टिसिटी। एंड दूसरा होता है द टाइप्स ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी, जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान देना, एवरी एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट, ठीक से ध्यान देना। नाउ आगे, इसको निकाल नहीं सकता शायद से मैं,
let me ठीक है, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं। एवरीवन, प्राइस इलास्टिसिटी, हमें प्राइस इलास्टिसिटी में क्या क्या सीखना है ध्यान देना। मैं यहाँ पे चार्ट बना रहा हूं बिकॉज ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है 8 मार्क के लिए। यू हैव टू लर्न मीनिंग ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी। एक समझना है मीनिंग, हमने मीनिंग समझा है बट फिर भी मैं समझाऊंगा मीनिंग। दूसरा, मीनिंग ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी। दूसरा समझना टाइप्स ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी। एंड तीसरा, टाइप्स ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी एंड तीसरा, राइट, मेथड्स ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी। मेथड्स, मीनिंग, it is responsiveness of quantity demanded with respect to changes in the price, ये मीनिंग है, right? So it is, you can say, responsiveness of demand of a commodity, demand of a commodity with respect to changes in the price of that commodity। लिख लेना, मैं जो लिख के दे रहा हूं इंपॉर्टेंट है, प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। टाइप्स, देयर आर 5 टाइप्स। एक होता है रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिव इलास्टिक जहां पे इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। दूसरा टाइप है रिलेटिवली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। तीसरा होता है यूनिटरी इलास्टिक, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। फोर्थ, परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिसिटी, perfectly elastic, elasticity tends to infinite। and fifth, perfectly inelastic, inelastic। ये मैं हर चीज समझाने वाला हूं, मैं अभी लिख के दे रहा हूं आप लोगों को। मेथड्स, एक मेथड जो हम प्रीवियस लेक्चर या उसके पहले से डिस्कस कर रहे हैं, जो है रेशियो मेथड, परसेंटेज मेथड, या कोई लोग उसको प्रोपोर्शनल मेथड बोलते हैं। नाम अलग अलग है, काम एक ही है। रेशियो मेथड, परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट। क्या, एक सेकंड, सिंपल लिखता हूं। रेशियो मतलब ही प्रोपोर्शन ना, परसेंटेज मेथड। सेकंड, ठीक है। दूसरा रेशियो और परसेंटेज मेथड। दूसरा है पॉइंट मेथड। तीसरा आर्क मेथड। आई डोंट नो आर्क मेथड आपके इसमें है क्या, आई नीड टू चेक, बट एक आर्क मेथड होती है, ARC, ARC, आर्क मेथड। आई नीड टू चेक। फोर्थ, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है,
लेट मी चेक आपके सिलेबस में क्या दिया है उन्होंने, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। कौन कौन से मेथड्स हैं मैं हाईलाइट करता हूं, ध्यान देना। या रेशियो और परसेंटेज मेथड, यस। सेकंड मेथड इज द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, यस। फिर है थर्ड मेथड, देखने दो, पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड, ओके। फोर्थ 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 ठीक है, ये लीनियर नॉन लीनियर उसमें आ गया। अच्छा, वो नहीं है, आर्क मेथड नहीं है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। आर्क मेथड पॉइंट मेथड का एक अलग टाइप है, नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो आर्क मेथड आपके सिलेबस में नहीं तो आप डिलीट करो, ठीक है। तो 3 मेथड्स हैं, तो आपको ये 3 क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसके साथ एक और चीज है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हो, अगर जिनको लिखना है एक और इसमें आप नीचे खींच सकते हो। डिटरमिनेंट्स ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी एंड इंपॉर्टेंस, determinants of price elasticity and importance of the price elasticity। ये पॉइंट्स हमें समझना है। डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइस ये सिंपल है, ये ज्यादा ये नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी, लिख लेना ये चार्ट। आगे अब हमें ये चीजें डिस्कस करनी है। आई विल स्टार्ट विद द टाइप्स, ठीक है, हो गया लिख के, सो दैट आई कैन डिस्कस द टाइप्स। किसी के क्वेश्चंस है? दैट इज रिड्यूस, नहीं समझा संजना, आई डिडंट गेट यू। संजना मैडम क्या बोल रहे थे आप? अच्छा, दे आर डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस दिस ईयर। ओके, आई वी विल अगेन कंफर्म, ठीक है। अगर ये नहीं है तो इसको हमें कंफर्म करना है, ठीक है। तो हमें 3 चीजें समझनी है एग्जाम के लिए, ध्यान देना। फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय, पहले तो हमने ये देख लिया, ध्यान देना, ठीक है। पहले तो हमने देखा कि प्राइस इलास्टिसिटी इज परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी सेम है, उसकी खुद की प्राइस, ध्यान देना। लॉ ऑफ डिमांड, ये प्राइस इलास्टिसिटी लॉ ऑफ डिमांड से मिलती है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, change in the quantity demanded of a commodity X divided by change in the price of the commodity X multiplied by old price of commodity X divided by old quantity demanded of commodity X। क्लियर है? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हमारा आंसर न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर कैन बी इक्वल टू 1, कैन बी ग्रेटर देन 1, कैन बी लेस देन 1, कैन बी इनफाइनाइट और कैन बी 0। अकॉर्डिंगली हमारे 5 टाइप्स बन गए, ठीक है। ध्यान देना। फर्स्ट क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। फर्स्ट, व्हेन, पहले लिखता हूं, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड,
मतलब क्या? when small change in the price, small change in the price मतलब denominator, small change in the denominator brings larger change, larger than that change in quantity demanded. क्या बोला, ध्यान देना. When small change in the price brings larger than that change in the quantity demanded, price changes by 10%. Everyone, try to understand. Price changes by 10%. Demand changes by 12%. Answer will be 1.2. More than 1. Price changes by 20%. Demand changes more than that. Example 30%. Answer is 3 by 2. 3 by 2 मतलब 1.5. Answer is worth that one. When small change in the price brings larger change in the demand. क्या बोला, ध्यान देना wording. When small change in the price brings larger change in the demand. Price थोड़े से change करो, demand ज्यादा से react हो रही है. इलास्टिक है, रिलेटिवली इलास्टिक है, मतलब डिमांड इलास्टिक है, रिस्पॉन्सिव है, सेंसिटिव है. थोड़ी चेंज करो प्राइस, डिमांड ज्यादा से चेंज होगी. जब ऐसे होता है, ऐसे कमोडिटीज के डिमांड को बोला जाता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. क्या बोला जाता है? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. that is percentage change in the quantity demanded of commodity X is greater than percentage change in the price of the commodity X. Change in the price is less, that less change brings larger change in the demand. उससे ज्यादा change रहेगा. थोड़े से प्राइस कम कर दो, लोग भीड़ करना स्टार्ट कर देंगे. 10% का सेल लगा दो, 20% का सेल लगा दो, 30% का सेल लगा दो, and you can find a right large number of buyers coming and demanding. क्यों? Because आप 10% का भी डिस्काउंट देते हो ना. लाइक अभी अमेजोन का चल रहा है, फ्लिपकार्ट का चल रहा है, दे आर गिविंग यू डिस्काउंट एंड पीपल आर बाइंग एंड बाइंग एंड बाइंग एंड बाइंग. ये लग्जरी गुड्स के केस में होता है, राइट? इसके केस में इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, राइट? नेक्स्ट, ये किसके केस में होता है? लग्जरी गुड्स के केस में होता है. ठीक है. अब इसमें एक और पॉइंट ऐड करना है, बट उसके पहले मैं डायग्राम निकालूंगा, ध्यान देना. डायग्राम कैसे निकाल रहा हूं, ध्यान देना प्लीज. और मैं एक समराइज डायग्राम भी दूंगा आपको, तो आपको याद भी रहेगा. ठीक है. एक ऊपर लिख देना, ऊपर मेरा एक स्टेटमेंट है जी. हाई more the flatter, more the elasticity. More the flatter, more is the elasticity. जितनी ज्यादा कर्व फ्लैट रहेगी उतनी उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा रहेगी. उसका उल्टा लिख सकते हो, मोर द फ्लैटर मोर द इलास्टिक. ये मेरा याद रखने का तरीका है. दूसरा लिख लेना, मोर द स्टीपर, मोर द स्टीपर. स्टीपर मतलब, ठीक है, स्टीप. मोर द स्टीपर, लेस इज द इलास्टिसिटी. जितनी ज्यादा फ्लैट होगी उतनी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा स्टीपर होगी उतनी कम इलास्टिसिटी होगी. स्टीपर एंड फ्लैटर आर अपोजिट. कर्व फ्लैट है एंड कर्व स्टीपर है. ठीक है. अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं प्लीज. दिस इज योर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी एक्स which is dependent on the price of X. Other factors are constant. सर आप लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हो? यस, डेफिनेटली. एंड एज पर लॉ ऑफ डिमांड योर डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. ध्यान देना, when the price is OP या OP1, the quantity demanded is OQ1. कोई प्रॉब्लम है आपको? ये पॉइंट आइडेंटिफाई करने आएंगे. When the price is OP1, quantity demanded is OQ1.
Now try to understand. Huh. You decrease the price. You decrease the price to OP2. Quantity demanded. मुझे बोलो, is it expansion or contraction? I want answer from you. Is it expansion or contraction? Or increase or decrease? You decrease the price. अब point A से point B आ गए. I want answer from you. उतना तो अब आना चाहिए यार. प्राइस कम कर दिया आपने, डिमांड एक्सपांड होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी. प्लीज टेल मी द आंसर. एक्सपेंशन. परफेक्ट. राइट. एक्सपेंशन. परफेक्ट. यू कैन सी आपने सपोज 10% से डिमांड डिक्रीज प्राइस कम कर दी. कितने से प्राइस कम कर दी? 10% से. डिमांड इंक्रीज्ड. डोंट यू फील इट इज मोर देन 10%? इट इंक्रीज बाय 20%. आपने प्राइस 10% से चेंज कर दी, डिमांड उससे ज्यादा से चेंज हो गई. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So can I say like 20% change in the demand is because of 10% change in the price? Answer is 2. Greater than 1. Greater than 1. So ऐसे कर्ज को, ये जो जिसे भी एक्स जो कमोडिटी है, इस कमोडिटी की डिमांड इलास्टिक है. Which shows a small change in the price, small decrease in the price, increase the demand by larger extent. और उल्टा देखो, ए स्मॉल इंक्रीज इन द प्राइस, थोड़ा प्राइस क्या ज्यादा कर दो, प्राइस 10% से इंक्रीज कर दो, डिमांड 20% से डिक्रीज हो गई. यू विल बी शॉक्ड. अरे मैंने खाली 10% प्राइस का इंक्रीज कर दी, डिमांड 20% से डिक्रीज हो गई. यस, ऐसे गुड्स होते हैं जिनके केस में स्मॉल चेंज इन द प्राइस लीड्स टू लार्जर चेंज इन द डिमांड. थोड़ा कम डिस्काउंट दे दो, मतलब डिस्काउंट कर दो, प्राइस कम कर दो, भीड़ लगेगी, एंड प्राइस इंक्रीज कर दो, सब लोग चले जाएंगे. ऐसे कमोडिटीज की डिमांड होती है रिलेटिवली इलास्टिक. तो ये कर्व होती है फ्लैटर. लिख लेना, फ्लैटर कर्व, फ्लैटर डिमांड कर्व, डिमांड कर्व. ठीक है, देख के समझ में आता है. स्मॉल चेंज इन द प्राइस, स्मॉल चेंज इन द प्राइस, 10% चेंज इन द प्राइस एग्जांपल ब्रिंग्स मोर देन 10% चेंज इन द डिमांड. 10% से प्राइस कम करो, 20% से डिमांड इंक्रीज हो रही है, 10% से ज्यादा से डिमांड इंक्रीज हो रही है. 10% से प्राइस इंक्रीज करो, 10% से ज्यादा से डिमांड गिर रही है. ऐसे केसेस में कर्व इज अ फ्लैटर. ऐसे कर्व को, राइट, यहां पे हम इसको बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1. फ्लैटर कर्व, ये पता होना चाहिए. फ्लैटर और लग्जरी, किसके केस में एप्लीकेबल होता है? लग्जरी. So luxury goods faces which kind of the demand curve? Flatter demand curve, relatively elastic demand curve. ठीक है, क्लियर है? अब दूसरा रिलेटिवली इलास्टिक. मैं यही कॉपी पेस्ट करने वाला, मैं कुछ अलग नहीं लिखने वाला. यहां तक कॉपी. देखो कैसे लिखता हूं मैं. रिलेटिवली इनइलास्टिक लिखना है. क्या लिखना है? रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड. नाउ एग्जैक्टली उल्टा इसका, इनइलास्टिक डिमांड. ठीक है, व्हेन ए लार्जर चेंज, when larger change, when large change in the price brings smaller than that, smaller than that change in the quantity demanded. When percentage change in the demand is less than percentage change in the price, answer will be less than 1. मतलब अब ध्यान देना कैसे. यहां पे एक और पॉइंट रखेंगे. ठीक है, कौन से गुड्स के केस में होता है और उसका कर्व का नेचर कैसे होता है, ध्यान देना. दिस इज योर quantity demanded of a commodity x axis. This is price of x axis. मैंने स्टीपर कर्व निकाली है. मैंने कौन सी कर्व निकाली? स्टीपर. देखो, when price was OP, when the price was OP1, the quantity demanded was OQ1.
क्वांटिटी डिमांडेड OQ1। मैं उसको और स्टीपर करता हूं, मतलब आपको और थोड़ा भी कंफ्यूजन ना रहे। देखो, मैंने प्राइस इतनी गिरा दी, मैंने प्राइस गिरा दी, मैंने प्राइस OP2 कर दी। दिस इज ऑलमोस्ट 10% सपोज डिक्रीज इन द प्राइस, 10% चेंज इन द प्राइस। एंड डिमांड देखो, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गए, एक्सपांड हो गए OQ2। डोंट यू फाइंड इट इज लेस देन 10%? ऑब्वियसली सर, देख के समझ में आ रहा है 5%, सपोज 5%, मैंने कुछ भी लिया है वैल्यूज। सो चेंज इन द प्राइस इज 10%, brings just 5% change in the demand. 10% change in the price brings less than that change in the demand. जब प्राइस चेंज होती है बट डिमांड उससे कम से चेंज होती है, उसको बोलेंगे इनइलास्टिक। आंसर इज 0.5, लेस देन 1। डिमांड इलास्टिक है बट उतनी नहीं, इनइलास्टिक बोलो, रिलेटिवली इनइलास्टिक है। ठीक है, पहले केस में क्या हुआ, जस्ट 10% चेंज इन द प्राइस। पहले केस में क्या हुआ, just 10% change in the price brings more than 10% change in the demand. डिमांड ज्यादा से चेंज होती है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। जब डिमांड ज्यादा से चेंज होगी तब हम उसको बोलेंगे इलास्टिक, तब हम बोलेंगे इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक। डिमांड कम से चेंज होगी, डिमांड चेंज हो रही है बट उतनी नहीं हो रही जितनी प्राइस हो रही है, मतलब एज कंपेयर टू प्राइस इट इज इलास्टिक, एज कंपेयर टू प्राइस इट इज इन इलास्टिक। ठीक है, सो अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, राइट। सो कैन आई से, राइट, इट इज एप्लीकेबल फॉर नेसेसिटी गुड्स। हाँ, नेसेसिटीज में आपने डिस्काउंट, मेडिकल हॉस्पिटल वालों ने बोला कि हम हार्ट ऑपरेशन पे, राइट, डिस्काउंट देंगे, तो चलो चलो डिस्काउंट लगा हॉस्पिटल में, चलो ऑपरेशन करके आते हैं। ऐसे नहीं होता है, जिनको जरूरत है वही लोग जाएंगे। डिमांड इंक्रीज होगी, मैं मानता हूं, बट जैसे मॉल के सामने भीड़ लगती है ना, 10% डिस्काउंट मॉल में, मॉल के सामने लगा 10% डिस्काउंट, एंड मेडिकल शॉप के सामने लगा 10% डिस्काउंट। भीड़ कहां पे ज्यादा होगी पता है, मॉल के सामने। क्यों? बिकॉज वो लग्जरी गुड्स है। उनके केस में 10% डिक्रीज इन द प्राइस विल रिजल्ट इन मोर देन 10% इंक्रीज इन द डिमांड। हर कोई डिमांड करने जाएगा, बट अगर मेडिकल शॉप वाला अगर 10% डिस्काउंट देता है ना, फिर भी उसके सामने उतनी भीड़ नहीं रहेगी, जिनको जरूरत है वही जाएंगे। हाँ, होगी डिमांड इंक्रीज, मैं मानता हूं, बट जितनी भीड़ मॉल के सामने ना, उतनी मेडिकल शॉप के सामने नहीं रहेगी। सो नेसेसिटीज के केस में, राइट, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, तो लिख लेना दे आर नेसेसिटीज। एंड राइट, इनके केस में दे आर स्टीपर, स्टीपर डिमांड कर्व, डिमांड कर्व। क्या बोला मैंने, व्हेन चेंज इन द प्राइस ब्रिंग्स मोर देन दैट चेंज इन द डिमांड, a small change in the price brings more than that change in the demand, या प्राइस में जितना चेंज है उससे ज्यादा चेंज डिमांड में, इलास्टिक। डिमांड इलास्टिक है एज कंपेयर टू प्राइस, प्राइस में चेंज है उससे कम चेंज डिमांड में, डिमांड इज इन इलास्टिक विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, कम है। ठीक है, इन इलास्टिक, लेस देन 1, आंसर क्या रहेगा, लेस देन 1, 5% डिवाइड बाय 10%, लेस देन 1। ठीक है, आगे, और किस गुड्स के केस में होता है, सो दिस इज, लिख लेना, इलास्टिसिटी लेस देन 1, कर्व इज स्टीपर, एंड कौन से गुड्स के केस में होता है, नेसेसिटी। इसलिए ये आप अगर आप मॉल के ओनर हो तो आपको समझ में आना चाहिए आपके प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, आपने डिस्काउंट देना चाहिए। बट अगर आप मेडिकल शॉप के ओनर हो तो आपको यह समझ में आना चाहिए आपके गुड्स की इलास्टिसिटी इन इलास्टिक है, आपने प्राइस इंक्रीज करनी चाहिए। सो प्राइस इंक्रीज करने से आपने 20% से प्राइस इंक्रीज की, सो डिमांड डिक्रीज होगी। अरे बट डिमांड कम 20% से कम से होगी, मतलब लाइक 10% से डिमांड कम होगी, आप फिर भी प्रॉफिट में रहोगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मॉल वाले ने प्राइस कम करो, वो उसने 20% का डिस्काउंट देना चाहिए, उसकी डिमांड 30, 40, 50, 60% से इंक्रीज होगी। और मेडिकल वाले ने 20% से अगर प्राइस कम इंक्रीज करेगा तो उसकी डिमांड कम होगी, मैं मानता हूं, बट नॉट मोर देन 20%, उससे कम होगी, तो ही विल मेक प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग द प्राइस। इसलिए लग्जरी गुड्स वाले प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, बाय डिक्रीजिंग द प्राइसेस, एंड नेसेसिटी वाले कैसे प्रॉफिट कमाते हैं,
बाय इंक्रीजिंग द प्राइजेस। पहले ये पता होना चाहिए आप किस में बिजनेस कर रहे हो। अगर आप नेसेसिटी में कर रहे हो एंड यू वांट टू इंक्रीज द प्रॉफिट, आई विल सजेस्ट यू टू डिक्रीज द प्राइस, बिकॉज आपकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है आपके प्रोडक्ट की। अगर आप नेसेसिटी में काम कर रहे हो तो वैसे केसेस में आई विल सजेस्ट यू टू इंक्रीज द प्राइस। आप मुझे गालियां दोगे कि सर डिमांड डिक्रीज हो रही है, बट मैं बोलूंगा डिमांड डिक्रीज होगी, मैं मानता हूं, बट उतने से नहीं होगी जितने से प्राइस आपने इंक्रीज किया है। स्टिल यू विल मेक मोर प्रॉफिट देन द अर्लियर। ठीक है, सो आपको आपके प्रोडक्ट का नेचर पता होना चाहिए। नेक्स्ट, यूनिटरी इलास्टिसिटी। थर्ड लिखो, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मतलब क्या, ध्यान देना। व्हाट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड? व्हेन a change in the price, when a change in the price brings equal change in the demand, brings equal change in the demand, equal change in the demand। प्राइस 10% से चेंज हो रही है, डिमांड भी 10% से चेंज हो रही है। प्राइस 20% से चेंज हो रही है, डिमांड भी 20% से चेंज हो रही है। प्राइस 30% से चेंज हो रही है, डिमांड भी 30% चेंज हो रही है। सो 30% डिवाइड बाय 30%, 20% डिवाइड बाय 20%, 10% डिवाइड बाय 10%, आंसर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज 1। सो आंसर जब 1 रहेगा उसको यूनिट बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक, राइट। व्हेन a change in the price brings equal change in the, right, demand, that is, right, percentage change in the quantity demanded of x is exactly equal to percentage change in the price of the x, therefore answer is 1। ठीक है, आगे लिख लेना। टाइप्स ऑफ गुड्स आई कैन नॉट से, आई डोंट नो, ऐसे कुछ नहीं है कि जनरली नेसेसिटी हम बोलते हैं लेस देन 1, लग्जरी इज ग्रेटर देन 1, प्राइस इलास्टिसिटी 1 वाले आई डोंट नो, ऐसे कोई टाइप्स गुड नहीं होते। ठीक है, बट टाइप्स नहीं बोल सकता, बट मैं कर्व का नेचर बोल सकता हूं, वो मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स, दिस इज प्राइस ऑफ एक्स। दिस इज ओरिजिनल प्राइस ओपी, दिस इज ओरिजिनल क्वांटिटी ओक्यू, या OP1 एंड OQ1 अभी तक ऐसे ले रहे तो वैसे ले रहा हूं। देखो, यू डिक्रीज द प्राइस फ्रॉम OP1 टू OP2, ऑलमोस्ट ये एरिया, ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया मैं चाहे तो यहाँ पे ग्रीन से दिखाता हूं। दिस एरिया इज exactly equal to this area, almost, मतलब what I want to tell you, try to understand what I want to tell you, कि जितने से प्राइस आपने डिक्रीज की, सपोज आपने 10% से प्राइस डिक्रीज की, आपने 10% से प्राइस डिक्रीज की, चेंज इन द प्राइस इज 10% एंड चेंज इन द डिमांड, डिमांड एक्सपांड हो गई एग्जैक्टली बाय 10%, या उल्टा आपने 10% से प्राइस इंक्रीज की, डिमांड डिक्रीज हो गई एग्जैक्टली 10% से। सो व्हेन चेंज इन द प्राइस ब्रिंग्स इक्वल चेंज इन द डिमांड, ऐसे टाइप्स के गुड्स को क्या बोला जाता है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व वाले बोले जाएगा। ठीक है, दिस कर्व इज अ राइट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व, लिख लेना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर मतलब क्या, कोई मुझे बोलेगा व्हाट डू यू मीन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एनीवन? मैं आपको समझा सकता हूं, बट मैं आपको पूछना चाहूंगा पहले, डज एनीवन नोज व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व? एनीवन? किसी को पता है क्या होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसका फीचर क्या होता है?
लेट मी आस्क यू, हाँ रक्षन, यू कैन टाइप मी द आंसर, कोई इश्यू नहीं, और यू रेज द हैंड, आई विल अनम्यूट यू. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व का फीचर क्या होता है? इक्वल चेंज, ओके, इक्वल चेंज, ओके. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व मतलब एनी पॉइंट ऑन द कर्व हैज द सेम एरिया, एनी पॉइंट ऑन द कर्व हैज द सेम एरिया. ध्यान देना, मतलब एक सेकंड, कॉपी पेस्ट. अब ध्यान देना, सपोज ये आपकी ओरिजिनल प्राइस है, सपोज योर ओरिजिनल प्राइस इज 5 रुपीज, क्वांटिटी डिमांड इज 20, ठीक है. व्हाट इज द एक्सपेंडिचर? 5 मल्टीप्लाई बाय 20. व्हाट इज द एरिया? 100. व्हाट इज द एरिया? दिस इज योर एरिया, ये आपका एरिया है भाई, 100. 5 मल्टीप्लाई बाय 20, दिस इज 5 मल्टीप्लाई बाय 20. रेक्टेंगुलर है, L मल्टीप्लाई बाय B इज एरिया. Now this is price 4 and this is quantity 25. What is this area now? 4 multiplied by 25 is still 100, still 100, ठीक है. सो अब आप देखो, डोंट यू फील द एरिया इज द सेम? कोई भी पॉइंट उठाओ, यहाँ पे कोई भी पॉइंट उठाओ, सपोज आपने ये पॉइंट उठाया, ये जो रहेगा ना, इसका भी एरिया 100 ही रहेगा. आपने ये पॉइंट उठाया, इसका भी एरिया 100 ही रहेगा. आपने ये वाला पॉइंट उठाया, इसका भी एरिया 100 ही रहेगा. एग्जांपल, इसका भी एरिया 100 ही रहेगा. सो जब मैं बोल रहा हूं ऐसे कर्व को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व. उसमें राइट एरिया रिमेन्स सेम, एरिया रिमेन्स सेम एट ईच पॉइंट, मतलब चेंज इज इक्वल, ठीक है. सो ऐसे कर्व्स को बोला जाता है. ये आपको प्रूव नहीं करना है, बट आपको पता होना चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? एवरी पॉइंट ऑन दैट कर्व हैज द सेम एरिया. ऐसे कर्व्स को बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व्स, ठीक है. टाइप ऑफ गुड्स आई कैन नॉट स्पेसिफाई, ठीक है. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है. फाउंडेशन में इस कंसेप्ट का बहुत ज्यादा यूज है, अभी यहां पे बोल के भी कोई फायदा नहीं. सो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू 1. देन द फोर्थ, everyone, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड ले रहा हूं, परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक है डिमांड, इन इलास्टिक, और वो भी परफेक्टली है. मतलब ध्यान देना, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड मतलब सर इन इलास्टिक है मतलब क्या? देखो मैंने इन इस रिलेटिवली इलास्टिक में क्या बोला था, मैंने बोला था डिमांड इज इन इलास्टिक विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस. प्राइस चेंज हो रही है बट डिमांड उतने से चेंज नहीं हो रही. इनफ्लेक्सिबल है, इन रिस्पॉन्सिव है. डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस इज इन इलास्टिक, मतलब उतने से चेंज नहीं हो रही है जितने से प्राइस चेंज हो रही है. व्हाट इज परफेक्टली इन इलास्टिक? डिमांड चेंज ही नहीं हो रही है, चेंज ही नहीं हो रही है. प्राइस चेंज हो रही है, डिमांड चेंज ही नहीं हो रही है. ऐसे टाइप्स के डिमांड को परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड बोला जाता है. नहीं समझा सर? ध्यान देना, प्राइस चेंजेस बाय 20%, डिमांड चेंजेस बाय 10%, इसको बोला जाता है डिमांड इनइलास्टिक है, रिलेटिवली इनइलास्टिक. प्राइस चेंजेस बाय 20%, डिमांड डज नॉट चेंज, एज इट इज है, टस से मस नहीं हो रही. पहले जितनी डिमांड थी उतनी डिमांड है, राइट. इसको बोला जाता है रिलेटिवली इनइलास्टिक, इसको बोला जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक. सो लिखेंगे यहां पे, व्हेन एनी चेंज इन द प्राइस in price right brings no change in the demand. प्राइस के साथ कुछ भी करो, इंक्रीज करो फिर भी डिमांड उतनी, डिक्रीज करो फिर भी डिमांड उतनी. ऐसे टाइप्स के डिमांड को बोला जाता है, राइट, लिखना
when any change in the price brings no change in the demand. That is, right? That is change in the right percentage change in the quantity demanded is zero. सिंपल वर्ड्स में डिमांड चेंज नहीं हो रही है. राहुल द्रविड़ जैसा प्लेयर, आप उसको बाउंसर डालो तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है, यॉर्कर डालो तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है, आप उसको लोअर लेंथ करो, गुड लेंथ करो, आप उसको वाइड डालो, कुछ भी करो, वो दिन दिन राइट क्रीज पे खड़ा है, स्टंप के सामने खड़ा है, आउट ही नहीं हो रहा है. बॉलर हर तरीके की डिलीवरी डाल रहा है, जो जो वो कर सकता है वो कर रहा है, बट वो भाई जगह पे खड़ा है, विकेट नहीं छोड़ रहा है, इनइलास्टिक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, प्राइस के साथ कुछ भी हो, वो वैसे के वैसे खड़ा है. प्राइस वैसे के वैसे, प्राइस कितने से भी चेंज हो, प्राइस चेंज करती है डिमांड, डिमांड जगह से हिल नहीं रही है, उसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. मैंने राहुल द्रविड़ का क्यों एग्जांपल दिया तो आपको क्लिक होगा. द वॉल, फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो, प्राइस इंक्रीज हो डिक्रीज हो, कितने से भी हो, डिमांड रिमेन एज इट इज. वॉल है, वॉल, वॉल कैसे खड़ी होती है वैसे डिमांड कर भी खड़ी रहेगी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. देयरफॉर राइट टाइप्स ऑफ गुड्स, देयर इज नो सच टाइप ऑफ गुड्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं डिमांड कर के बारे में लिखूंगा, ध्यान देना. देयरफॉर इलास्टिसिटी इज जीरो. मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान देना. कर्व, ध्यान देना. क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी एक्स एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स. आपकी प्राइस P1 होने दो, P2 होने दो, P3 होने दो, P4 होने दो. डिमांड इज OQ ओनली और OQ. वॉल जैसे खड़ी है डिमांड, वॉल जैसे खड़ी है डिमांड कर्व, वर्टिकल है टू, इट इज वर्टिकल एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस. सो आप प्राइस OP होने दो, OP1 होने दो, OQ डिमांड, OP2 होने दो, OQ डिमांड, OP3 होने दो, OQ डिमांड, OP4 होने दो, OQ डिमांड. डिमांड 10 से मस नहीं हो रही है. सो ऐसे केसेस में एनी चेंज इन द प्राइस, 10% से चेंज करो, नो पर. आप 20% से प्राइस चेंज करो, नो चेंज. आप 30% से चेंज करो, नो चेंज. सो जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज ऑलवेज जीरो. आंसर इज जीरो. सो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ध्यान देना, बोला जाता है व्हेन डिमांड डज नॉट चेंज इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन द प्राइस. डिमांड कुछ भी चेंज नहीं होती है. ऐसे गुड्स होते हैं कोई, लाइक एकदम, अगर आपको एग्जांपल देना, यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट की डिमांड, अब सॉल्ट फ्री हो गए, हम ज्यादा परचेस करेंगे कि नहीं, महंगा होगा तो भी उतना परचेस करेंगे. एकदम लोएस्ट जो होते ना, एकदम चीपेस्ट टू चीपेस्ट, या एकदम कॉस्टलीस्ट लाइक डिमांड डायमंड, उसकी प्राइस इंक्रीज हो डिक्रीज हो, मेरे लिए तो डिमांड चेंज नहीं होती. वो सर 10 लाख का डायमंड है, सर वो 9 लाख का हो गया, फिर भी मैं डिमांड नहीं करने वाला. सर वो 12 लाख का हो गया, फिर भी मैं डिमांड नहीं करने वाला. एकदम कॉस्टलीस्ट टू कॉस्टलीस्ट आइटम, एकदम चीपेस्ट टू चीपेस्ट आइटम, लाइक एग्जांपल न्यूज़पेपर, लाइक एग्जांपल सॉल्ट. न्यूज़पेपर 1 रुपए का 1.5 रुपए का हो गया, मतलब 50% से प्राइस इंक्रीज हो गई, फिर भी आप परचेस करते हो ना, योर डिमांड डज नॉट चेंज. या आप देखते हो अरे 1 का है, आज 1.50 का हो गया, 1.5 रुपए का हो गया, नहीं परचेस करूंगा, ऐसे नहीं होता. बिकॉज आपके लिए फर्क नहीं. बटन, ये शर्ट के बटन महंगे हो गए इसलिए आप परचेस नहीं करते, ऐसे है क्या? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं जो आपको समझेंगे. एंड दीज एग्जांपल्स ओनली गिवन इन द मॉड्यूल या टेक्स्ट बुक. एकदम लो प्राइस गुड्स या तो एकदम हाई प्राइस गुड्स, जिनकी प्राइस चेंज होने से लोगों की डिमांड चेंज ही नहीं होती. हाई प्राइस का तो समझ सकते हैं, हम परचेस ही नहीं करेंगे, बट लो प्राइस सॉल्ट, सर किसी दुकान में लगा है नमक पे 50% डिस्काउंट है, चलो सर हम 4-5 बैग्स परचेस करके लेके आएंगे. आप नहीं करते, आप जितना लेते हो ना उतना ही लेते हो, बिकॉज सॉल्ट जितनी जरूरत है उतनी चाहिए, ज्यादा से भी फायदा नहीं, कम से भी नहीं. सॉल्ट की प्राइस इंक्रीज हो गई फिर भी हमें फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज पहले ही उसकी प्राइस बहुत कम है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ऐसी कमोडिटीज जिनके केस में प्राइस कितनी भी हो, वी कंज्यूम व्हाट वी वांट.
पहले जितना करते थे उतना ही कर रहे, एग्जाम्पल सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टिकल डिमांड कर कैसी है, वर्टिकल। मैंने राहुल द्रविड़ का एग्जांपल दिया था, वॉल, जैसे वॉल खड़ी रहती है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शोएब अख्तर हो या ब्रेटली हो या मेघरात हो, वो खड़ा ही है, राइट, कैसे भी डिलीवरी आए वो खड़ा ही है, नो इम्पैक्ट ऑन द डिमांड, कुछ भी हो। सच काइंड ऑफ डिमांड कर्व इज कॉल्ड एज, राइट, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो लिख लेना वर्टिकल, वर्टिकल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। आई थिंक वर्टिकल की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, आई थिंक CLE है, वर्टिकल एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। इलास्टिसिटी इज 0, इनइलास्टिक है और परफेक्टली इनइलास्टिक है, ठीक है। बराबर लिखा था क्या, ठीक है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, फिफ्थ एंड द लास्ट टाइप इज परफेक्टली इलास्टिक, एग्जैक्टली इसका उल्टा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। सर मतलब क्या, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब, लेट मी चेक, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब क्या, ध्यान देना, when a very small change in the price, इलास्टिक है, डिमांड प्राइस से ज्यादा से चेंज होगी, with respect to change in the price demand will change more, that is elastic. When very small change in the price brings infinite change in quantity demand or demand, आप थोड़ी प्राइस क्या चेंज कर दो, डिमांड इन्फिनेटली चेंज हो जाएगी, डिमांड इन्फिनेटली चेंज हो जाएगी। सर ऐसे होते हैं, ऐसे कमोडिटी जनरली एग्जिस्टिंग में नहीं होते, बट एक कंसेप्ट है, वो लिख लेना, ठीक है। सो दैट इज change in the quantity demanded is almost infinite. So in infinite divided by anything is always infinite, इसलिए आंसर infinite होता है, ठीक है। लिख लेना, मतलब लाइक दिस, राइट, डिमांड कुछ भी हो सकती है, OQ हो सकती है, OQ1 हो सकती है, OQ2 हो सकती है, OQ3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। थोड़ी प्राइस चेंज कर दो, डिमांड इन्फिनेटली इंक्रीज होगी, राइट। सपोज आपकी प्राइस इतनी है, नो वन इज बाइंग यू, आपने थोड़ी क्या प्राइस कम कर दी, एवरीवन इज बाइंग यू, बाइंग फ्रॉम यू। सो ये होती है, इसमें लिख लेना हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो परफेक्ट कंपटीशन है ना, परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व ऐसे होती है, उधर लिखा है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द गुड्स इन द परफेक्ट कंपटीशन इज ए परफेक्टली इलास्टिक, मतलब वहां पे प्राइस डिसाइड होती है, मार्केट प्राइस डिसाइड करता है, एंड एवरी फर्म इन द परफेक्ट कंपटीशन एक्सेप्ट द प्राइस। क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, इन दैट चैप्टर वी अंडरस्टूड परफेक्ट कंपटीशन में हु डिसाइड द प्राइस, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई डिसाइड द प्राइस, फर्म इज ए प्राइस टेकर, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म इज ए प्राइस टेकर, एंड वो जो प्राइस मार्केट ने डिसाइड की वही प्राइस पे वो सेल करेंगे, जितना है उतना, दे कैन नॉट चेंज। अगर वो प्राइस ज्यादा करेंगे ना, नो वन विल बाय फ्रॉम देम, वो थोड़ी भी प्राइस बाय इंक्रीज करेंगे ना मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन फर्म में कोई भी प्राइस इंक्रीज करेगा उससे कोई बाय नहीं करेगा, बिकॉज सब कोई, हर कोई वही सेम होमोजेनियस परफेक्टली सब्स्टिट्यूट सेल कर रहा है, होमोजेनियस कमोडिटी परफेक्टली सब्स्टिट्यूट सेल कर रहा है, और उसके लिए मैं 11 रुपए लगा रहा हूं और मेरे बाजू में 10 रुपए लगा रहा है, तो कौन किससे परचेज होगा, 10 रुपए से। सो ऐसे कमोडिटीज को बोला जाता है परफेक्टली इलास्टिक, उनकी डिमांड कर क्या होती है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, ठीक है। सो मैं 2 मिनट में रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान देना एवरीवन, व्हेन ए चेंज इन द प्राइस brings larger change in the demand, when
A change in the price brings larger change in the demand, relatively elastic, greater than 1. When change in the price brings lesser change in the demand, inelastic, relatively inelastic. When change in the price brings equal change in the demand, equal to 1, right? Unitary. Change in the price does not bring any change in the demand. Demand zero hai, zero change hai. Answer is 0, perfectly inelastic. When change in the price brings infinite change in the demand, परफेक्टली इलास्टिक. और इन कर्व्स को लिख लेना, राइट, आपको रिवीजन के लिए. ओ सॉरी, मैं एक साथ ही सब कर्व्स लिख के दे रहा हूं. दिस इज क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एक्स, दिस इज प्राइस ऑफ द एक्स. I have given a lot of thought over the economics. ठीक है. Suppose this is your demand curve. Price elasticity is infinite. This is your demand curve. Price elasticity is 0. This is your demand curve. Price elasticity is equal to 1. Steeper, थोड़ी स्टीपर है. प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1. फ्लैटर, प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1. सो मैंने एक सेंटेंस लिख के दिया था, मैंने बोला ऊपर लिख लेना, जितना ज्यादा फ्लैटर उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी. ये तो कुछ भी फ्लैट नहीं है, इसलिए इसकी इलास्टिसिटी 0. ये उससे थोड़ी ज्यादा फ्लैट है, इसलिए इसकी 0 से ज्यादा है. ये उससे ज्यादा थोड़ी फ्लैट है, तो ये 1 है. सपोज ये उससे भी ज्यादा फ्लैट है, ग्रेटर देन 1. और ये उससे भी ज्यादा है, ये एकदम फ्लैट है, इनफाइनाइट. इसलिए मैंने बोला था जितना ज्यादा फ्लैट उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी, या जितना ज्यादा स्टीपर, ये स्टीपर है ही नहीं, उतनी कम इलास्टिसिटी, ये इनफाइनाइट है ऐसे. और ये परफेक्ट स्टीपर है, इसलिए इसकी इलास्टिसिटी सबसे कम, मतलब 0. परफेक्ट इलास्टिसिटी मतलब आप प्राइस कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हो, आप प्राइस वेरी 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 स्मॉल चेंज. मैं यहां पे दिखा भी नहीं सकता इतना छोटा चेंज है, इस कर्व पे मैं दिखा भी नहीं सकता इतना छोटा चेंज है प्राइस में. और डिमांड इनफिनिटली चेंज होती है. डिमांड OQ1, OQ2, OQ3 जितना है उतना सेल कर सकते हो. मतलब इतना स्मॉल चेंज है, आई कैन नॉट इवन शो यू. बहुत छोटा चेंज है, मुझे एकदम माइन्यूटली ऐसे देखना पड़ेगा, इतना छोटा चेंज है प्राइस पे. ठीक है, ऐसे दिखता नहीं सामने से, एकदम स्मॉल चेंज है प्राइस में, वेरी 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 स्मॉल चेंज इन द प्राइस. थोड़ी प्राइस कम कर दी मैंने, बहुत थोड़ी प्राइस कम कर दी, मैंने बहुत थोड़ी प्राइस कम कर दी, एंड मेरी डिमांड इन्फिनिटली इंक्रीज हो गई. अगर मैं थोड़ी प्राइस इंक्रीज करता हूं, मेरी डिमांड 0 हो गई, मेरी डिमांड होगी ही नहीं. ओ, ऐसे चीजों को बोला जाता है. अगेन अनरियलिस्टिक, नॉट द रियलिस्टिक. ठीक है, तो ये आपको रिवीजन के लिए ये डायग्राम हेल्प करेगी. सो हमने 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी देखे, कौन कौन से मैं यहां पे देख रहा हूं, देखो. ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब when a small change in the price brings infinite change in the demand, infinite change in the demand, perfectly elastic. Perfectly inelastic, any change in the price does not change the demand at all, 0 change in the demand, perfectly inelastic. Unitary elastic, when a change in the price brings equal change in the demand, answer is 1. उसके बाद, ठीक है, perfectly elastic, perfectly elastic, when a small change in the price brings larger change in the demand, relatively elastic. When change in the price brings lesser change in the demand, relatively inelastic. You have to draw the straight line. तो ये जो है ना, ये आपको समझाएगा. ठीक है, क्लियर है. कर्व्स, चलो कर्व्स ड्रॉ करो. क्या फर्क पड़ता है मैडम, क्या फर्क पड़ता है, स्टीपर रखो. देखो ना, उन्होंने कर्व्स ड्रॉ किए तो कर्व्स ड्रॉ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. इट्स सेम. इधर दिया होगा उन्होंने ये, अच्छा ये मेथड से इसके ऊपर रहेगा, मतलब ये उन्होंने परफेक्टली इलास्टिक दिखाया, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने परफेक्टली इनइलास्टिक दिखाया, वर्टिकल लाइन. यहाँ पे उन्होंने ऐसे कर्व दिखाई, ये एग्जैक्टली इक्वल टू 1 दिखाया उन्होंने, इसको थोड़ा स्टीपर कर दिया. ठीक है,
यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिव इलास्टिक। मतलब आप क्या करना है, अगर आपको निकालना ही है ना, फ्लैटर करो निकालना है इलास्टिक के लिए, मतलब लाइक दिस। सपोज आपको रिलेटिव इलास्टिक दिखाना है तो आप थोड़ा ऐसे दिखाओ। अगर आपको इनइलास्टिक दिखाना है, रिलेटिव इनइलास्टिक, थोड़ा ऐसे दिखाओ। एंड अगर आपको यूनिटरी दिखाना है तो थोड़ा ऐसे दिखाओ, ठीक है। यू कैन ड्रॉ द कर्व, यू कैन ड्रॉ द लाइन, एवरीथिंग इज फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो आज आपको क्या करना है, ध्यान देना। आज आपको ये पॉइंट्स पढ़ने हैं, विच पॉइंट्स मैं यहाँ पे हाईलाइट करके दे रहा हूँ, ठीक है। टाइप्स ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी, परफेक्टली इलास्टिक है मैंने एक्सप्लेन किया है, राइट। उसके बाद परफेक्टली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, थर्ड, फोर्थ रिलेटिवली इलास्टिक, एंड फिफ्थ रिलेटिवली इनइलास्टिक। यहां तक आपको पढ़ना है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में, राइट, मुझे इस एक वीक में एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेना है, मतलब ये मेरा खत्म हो जाए। जैसे मुझे टाइम मिलेगा आई विल टेक द लेक्चर। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, आपके कॉलेज दिन भर चलते हैं, ये प्रॉब्लम आता है। कोई इश्यू नहीं, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टेक द लेक्चर, ठीक है। जैसे मुझे टाइम मिलेगा आई विल ऑल्सो कवर, इसी वीक में मैं खत्म करूंगा, ठीक है। अगर आपका एक ज्यादा वीक में होता है तो आई कैन टेक ब्रेक ऑन संडे एंड आई कैन गो टू माई विलेज। लेकिन वीक में नहीं ले सकता तो संडे का लेक्चर मुझे ड्रॉप करना ठीक नहीं लगता, इसलिए मुझे जाना है गाँव कभी तो अगर इस वीक में एक आधा लेक्चर होता है तो आई विल गेट टाइम, मैं संडे का लेक्चर फिर पहले ले सकता हूँ, ठीक है। मिस लेक्चर नहीं होना चाहिए, बस वही टारगेट है। आगे एनीवन हैज डाउट रिलेटेड टू दिस? नो इश्यूज, ठीक है। ओके, आई विल शेयर द नोट्स, ये मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ, ठीक है। थैंक यू।